The Little Fir Tree. Once a magician was returning home. All of a sudden, it began to rain heavily. He looked around for shelter and saw a little fir tree. He ran there and took shelter. Soon it stopped raining. The magician said to the tree, "Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes, and I will grant them," said the magician. The fir tree had needle like leaves, and no birds ever made their nests in it. So it said, "I wish I had green leaves like my other friends." Next morning, its wish was granted. Soon, a goat came along and ate all the green leaves. "Oh dear," said the fir tree, "I wish I had gold leaves." When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. A man came along and stole all the gold leaves. This time the fir tree said, "I wish I had glass leaves." Men do not steal glass leaves. At night the wind blew and all the glass leaves broke. The fir tree said, "I want my old needle-like leaves back, so that goats do not eat them, man cannot steal them, and wind cannot break them." The tree went to sleep. When it woke up the next morning, its needle-like leaves were back again. एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। उसने आश्रय के लिए चारों ओर देखा और उसने एक छोटा सा देवदार का पेड़ देखा। वह वहां दौड़ा और शरण ली। जल्द ही बारिश बंद हो गई। जादूगर ने पेड़ से कहा, "धन्यवाद, आपने मुझ पर दया की है। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। 4 इच्छाएं मांगे और मैं उन्हें प्रदान करूँगा," जादूगर ने कहा। देवदार के पेड़ में सुई की तरह के पत्ते थे और इसमें कभी किसी पक्षी ने अपना घोंसला नहीं बनाया था। तो उसने कहा, "काश मेरे पास मेरे अन्य दोस्तों की तरह हरे पत्ते होते।" अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हुई। जल्द ही एक बकरी और बकरियों के साथ आई और सभी हरी पत्तियों को खा गई। "ओह डियर," देवदार के पेड़ ने कहा, "काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती।" अगली सुबह जब नन्हा देवदार का पेड़ उठा तो सोने के पत्ते देखकर हैरान रह गया। एक आदमी आया और उसने सोने के सारे पत्ते चुरा लिए। इस बार देवदार के पेड़ ने कहा, "काश मेरे पास कांच के पत्ते होते।" मनुष्य कांच के पत्ते नहीं चुराते। रात में हवा चली और कांच के सारे पत्ते टूट गए। देवदार के पेड़ ने कहा, "मुझे मेरी पुरानी सुई की तरह पत्ते वापस चाहिए, ताकि बकरियां उन्हें न खाएं, मनुष्य उन्हें चुरा नहीं सकता और हवा उन्हें तोड़ नहीं सकती।" पेड़ सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी सुई जैसी पत्तियां फिर से वापस आ गईं। लेसन नंबर 14, द लिटिल फर ट्री, छोटा देवदार का पेड़। Once a magician was returning home. All of a sudden, it began to rain heavily. He looked around for shelter and saw
a little fir tree. He ran there and took shelter. Soon it stopped raining. The magician said to the tree, "Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes, and I will grant them," said the magician. The fir tree had needle-like leaves, and no birds ever made their nest in it. So it said, "I wish I had green leaves like my other friends." Next morning, its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. "Oh dear," said the fir tree, "I wish I had gold leaves." When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. A man came along and stole all the gold leaves. This time the fir tree said, "I wish I had glass leaves. Men do not steal glass leaves." At night the wind blew, and all the glass leaves broke. The fir tree said, "I want my old needle-like leaves back, so that goats do not eat them. Man cannot steal them, and wind cannot break them." The tree went to sleep. When it woke up the next morning, its needle-like leaves were back again. You should be happy with what you have. बच्चों, इस कहानी का अब हिंदी अनुवाद भी हम लोग देख लेते हैं। कहानी का नाम है छोटा देवदार का पेड़। एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। उसने आश्रय के लिए चारों ओर देखा और उसने एक छोटा सा देवदार का पेड़ देखा। वह वहां दौड़ा और शरण ली। जल्द ही बारिश बंद हो गई। जादूगर ने पेड़ से कहा, "धन्यवाद, आपने मुझ पर दया की है। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। 4 इच्छाएं मांगे और मैं उन्हें प्रदान करूँगा," जादूगर ने कहा। देवदार के पेड़ में सुई की तरह के पत्ते थे और इसमें कभी किसी पक्षी ने अपना घोंसला नहीं बनाया था। तो उसने कहा, "काश मेरे पास मेरे अन्य दोस्तों की तरह हरे पत्ते होते।" अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हुई। जल्द ही एक बकरी और बकरियों के साथ आई और सभी हरी पत्तियों को खा गई। ओह डियर, देवदार के पेड़ ने कहा, "काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती।" अगली सुबह जब नन्हा देवदार का पेड़ उठा तो सोने के पत्ते देखकर हैरान रह गया। एक आदमी आया और उसने सोने के सारे पत्ते चुरा लिए। इस बार देवदार के पेड़ ने कहा, "काश मेरे पास कांच के पत्ते होते।" मनुष्य कांच के पत्ते नहीं चुराते। रात में हवा चली और कांच के सारे पत्ते टूट गए। देवदार के पेड़ ने कहा, "मुझे मेरी पुरानी सुई की तरह पत्ते वापस चाहिए, ताकि बकरियां उन्हें न खाएं, मनुष्य उन्हें चुरा नहीं सकता और हवा उन्हें तोड़ नहीं सकती।"
पेड़ सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी सुई जैसी पत्तियां फिर से वापस आ गई। कहानी हमें बताना चाहती है कि आपके पास जो है उसे में खुश रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर का सवाल है, ए हु ग्रांटेड 4 विशेष टू द फर ट्री एंड व्हाई? हु ग्रांटेड 4 विशेष टू द फर ट्री एंड व्हाई? देवदार के पेड़ को 4 इच्छाएं किसने दी और क्यों? देवदार के पेड़ को 4 इच्छाएं किसने दी और क्यों? उत्तर देखते हैं। आंसर, द मैजिशियन ग्रांटेड द फर ट्री 4 wishes for shelter. The magician granted the fir tree 4 wishes for shelter. जादूगर ने देवदार के पेड़ को आश्रय देने के लिए 4 इच्छाएं दी। जादूगर ने देवदार के पेड़ को आश्रय देने के लिए 4 इच्छाएं दी। बी नंबर का क्वेश्चन है, Why did no bird make its nest in the fir tree? Why did no bird make its nest in the fir tree? किसी चिड़िया ने देवदार के पेड़ में अपना घोंसला क्यों नहीं बनाया? किसी चिड़िया ने देवदार के पेड़ में अपना घोंसला क्यों नहीं बनाया? आंसर, द फर ट्री हैड needle-like leaves, so no bird made a nest in it. The fir tree had needle-like leaves, so no bird made a nest in it. देवदार के पेड़ में सुई के समान पत्ते थे, इसलिए किसी पक्षी ने उसमें घोंसला नहीं बनाया। देवदार के पेड़ में सुई के समान पत्ते थे, इसलिए किसी पक्षी ने उसमें घोंसला नहीं बनाया। सवाल नंबर सी, What was the second wish of the fir tree? What was the second wish of the fir tree? देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा क्या थी? देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा क्या थी? आंसर, the second wish of the fir tree was for gold leaves. The second wish of the fir tree was for gold leaves. देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा सोने की पत्तियों की थी। डी, Why did the fir tree want to have glass leaves? What happened to the glass leaves? Why did the fir tree want to have glass leaves? What happened to the glass leaves? देवदार के पेड़ को कांच के पत्ते क्यों चाहिए थे? कांच के पत्तों का क्या हुआ? देवदार के पेड़ को कांच के पत्ते क्यों चाहिए थे? कांच के पत्तों का क्या हुआ? आंसर, the fir tree thought that if he had glass leaves, people would not steal the glass leaves. The fir tree thought that if he had glass leaves, people would not steal the glass leaves.
देवदार के पेड़ ने सोचा कि अगर उसके पास कांच के पत्ते होंगे तो लोग चोरी नहीं करेंगे। देवदार के पेड़ ने सोचा कि अगर उसके पास कांच के पत्ते होंगे तो लोग चोरी नहीं करेंगे। E. Why did the fir tree wish to have its needle-like leaves back? E. Why did the fir tree wish to have its needle-like leaves back? देवदार के पेड़ ने अपनी सुई जैसी पत्तियों को वापस पाने की इच्छा क्यों जताई? देवदार के पेड़ ने अपनी सुई जैसी पत्तियों को वापस पाने की इच्छा क्यों जताई? आंसर: At last the pine tree understood that if I had needle-like leaves, the goat would not eat them, man could not steal them, and the wind could not break them. Answer: At last the pine tree understood that if I had needle-like leaves, the goat would not eat them, man could not steal them, and the wind could not break them. अंत में देवदार के पेड़ ने समझ लिया कि अगर मेरे पास सुई जैसी पत्तियां होती तो बकरी उन्हें नहीं खाती, आदमी उन्हें नहीं चुरा सकता और हवा उन्हें तोड़ नहीं सकती। अंत में देवदार के पेड़ ने समझ लिया कि अगर मेरे पास सुई जैसी पत्तियां होती तो बकरी उन्हें नहीं खाती, आदमी उन्हें चुरा नहीं सकता और हवा उन्हें तोड़ नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 2, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सत्य के लिए T और असत्य कथन के लिए F लिखें। सत्य के लिए T और असत्य कथन के लिए F लिखें। A. The fir tree had soft green leaves. देवदार के पेड़ में मुलायम हरे पत्ते थे। The fir tree had soft green leaves. देवदार के पेड़ में मुलायम हरे पत्ते थे। आंसर F, मतलब यह कथन गलत है, असत्य है। B. The wind broke all the glass leaves. The wind broke all the glass leaves. हवा ने कांच के सारे पत्ते तोड़ दिए। हवा ने कांच के सारे पत्ते तोड़ दिए। आंसर है T, मतलब यह कथन सत्य है। C. The fir tree did not get its needle-like leaves back. The fir tree did not get its needle-like leaves back. देवदार के पेड़ को उसकी सुई जैसी पत्ती वापस नहीं मिली। देवदार के पेड़ को उसकी सुई जैसी पत्ती वापस नहीं मिली। इसका आंसर है F, मतलब यह कथन गलत है, असत्य है। D. We should be happy with what we have. हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। We should be happy with what we have. हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। आंसर है T, मतलब यह कथन सत्य है। और यही कथन ही इस पाठ का सार है। इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। अब देखते हैं वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। खाली स्थान भरना है इन शब्दों का प्रयोग करके। शेल्टर, ग्रांट, स्टील, हेवीली, अलोंग, इनका प्रयोग करके हमको खाली स्थान भरना है। पहला है, A नंबर का क्वेश्चन है,
The building was damaged by the fire. The building was damaged by the fire. यहाँ पर शब्द भरना है heavily, तो हो जाएगा the building was heavily damaged by the fire. B है I took dash under my friend's umbrella. यहाँ पर हमें भरना है shelter. shelter शब्द यहाँ पे हमें भरना है, तो हो जाएगा I took shelter under my friend's umbrella. सी देखते हैं। काइंडली यहाँ पे हमने भरा है ग्रांट। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। डी देखते हैं। शी वेंट, यहाँ पर शब्द भरा है अलॉन्ग। शी वेंट अलॉन्ग विथ हर मदर टू वॉच अ मूवी। शी वेंट अलॉन्ग with her mother to watch a movie. ई को देखिए, ई नंबर का क्वेश्चन। इट इज अ बैड हैबिट टू, यहाँ पे शब्द भरना है स्टील। इट इज अ बैड हैबिट टू स्टील अदर्स थिंग्स। दूसरा सवाल लिखिए। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन है। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। Rearrange the letters to make a meaningful words. Rearrange करना है लेटर को, और जिससे कि यह एक सार्थक शब्द बन जाए। ए नंबर का सवाल लिखिए। यहाँ पे दिया है ENELDE, तो इसको हम अरेंज करेंगे, फिर से रीअरेंज करेंगे और शब्द बनेगा नीडल। NEEDLE नीडल। दूसरा देखिए बी नंबर का सवाल। DLGO, इसको सही से रखने पर हमें शब्द प्राप्त होता है गोल्ड। GOLD गोल्ड। तीसरा देखिए दिया हुआ है ALGSS। तो इसको अरेंज करने के बाद हमें मिलता है शब्द ग्लास। GLASS ग्लास। डी है, डी दिया हुआ है REENG, तो इसको अरेंज करने के बाद हमें शब्द मिलता है ग्रीन। GREEN ग्रीन। लैंग्वेज प्रैक्टिस पे इसमें पहला दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग करके हमको खाली स्थान को भरना है। हैज़ और हैव का मतलब होता है पास होना। हैज़ और हैव का मतलब होता है पास होना। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो यहाँ पर हमें ध्यान दे करके हैज़ और हैव का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है रमन हैज़ अ गुड स्टोरी बुक। यहाँ हमने लिखा हैज़, रमन हैज़ अ गुड स्टोरी बुक। दूसरा सेंटेंस है आई, हमने यहाँ लिखा हैव, आई हैव अ यंगर ब्रदर। आई हैव अ यंगर ब्रदर। सी नंबर का क्वेश्चन है दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क। यहाँ लिखा हमने हैव, दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क। डी देखिए वी हैव अ गेट टुगेदर। वी हैव अ गेट टुगेदर। ई नंबर का सवाल इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। एफ देखते हैं एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। जी देखते हैं जी नंबर का सवाल अनीता, यहाँ ए है। अनीता हैज़ अ न्यू पेंसिल बॉक्स। अनीता हैज़ अ न्यू पेंसिल बॉक्स। एच वी हैव बीन टू द जू।
We have been to the zoo.